Hello students, welcome to my channel, and today we will continue exercise 2.1 of sequence and series. In this video, we will discuss question number 3 to question number 8. Let's start question number 3. Which term of GP 5, 25, 125, 625, dash dash is 5 raised to 10. See here, you have to find the particular term whose value is 5 raised to 10. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करते तो तुरंत आंसर आएगा. देखिए यहाँ पे टर्म जो है 5, 25, मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे 5, 25, 125, 625, डैश डैश 5 रेज़ टू 10. सी ये जो है 125, हाँ देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 रेज़ टू 1. व्हाट इज 25? 5 स्क्वायर मीन्स 5 raised to 1 is first term, second term is 5 square. What is third term? 5 raised to 3 means 125. What is fourth term? 5 raised to 4 means this one. Okay. Fifth term, sixth term, seventh term. What is eighth term? 5 raised to 8. And this is 10 term means n is equal to 10. Direct answer आ गया. Okay. और हम any number of term निकाल सकते. Find the terms of GP such that their terms are 5, 25, 125, 625, dash dash 5 raised to 33. Which term whose value is 5 raised to 33? What is n here? N is equal to 33. Okay, because of first term is 5 raised to 1, 7th term is 5 raised to 7, 12th term is 5 raised to 12, therefore 33 term is 5 raised to 33. तो इस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक्स में आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं. n is 33. So the answer for previous question is n is equal to 10. But that method is not applicable. Okay, that is not applicable. You have to apply n term formula, Tn formula for GP. Okay, Tn formula for GP. Here first term A is given. You have to find out R from T2 upon T1. What is T2? 25 upon T1 is 5, that is equal to 5. R is 5 and A is also 5. So you have to substitute Tn AR in Tn formula. Then you will get n. तो यहाँ पर हमें n फाइंड आउट करना है. Okay, let's start the solution. Here A is equal to 5, R is equal to T2 upon T1. हर एक सम में R इस तरीके से निकालना है आपको T2 upon T1 से. What is T2? What is second term here? 25 upon first term is 5, and after simplifying it becomes 5. Also Tn is given. What is Tn? 5 raised to 10. So by using Tn formula we know that, or we have Tn is equal to A into R raised to n minus 1. तो यहाँ पर हम Tn की वैल्यू लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, R सब्स्टिट्यूट करेंगे. What is Tn? Tn is equal to 5 raised to 10 is equal to 5 into 5 raised to n minus 1. n यहाँ पर unknown है. So you have to apply laws of indices. You know A raised to m into A raised to n. Base is same here, that is A raised to m plus n. तो यहाँ पर जो है 5 raised to 1 into 5 raised to n minus 1, and that is nothing but 5 raised to n आ जाएगा वो. Means 5 raised to n is equal to 5 raised to 10 by laws of indices. और आप 5 raised to इससे पहले भी लिख सकते हैं आप
ये 5:10 इज इक्वल टू 5:10 लिखो और 5:10 इज इक्वल टू 5:10 लिख सकते हैं. ओके, तो इसी बेस इज सेम, हेंस n इज इक्वल टू 10. दैट्स इट, हमें n मिल गया. देखिए यहाँ पे 3-4 स्टेप में आंसर आ रहा है और शॉर्टकट ट्रिक्स में डायरेक्ट आंसर आ रहा है, लेकिन HSC मेथड में इसी तरीके से लिखना है. ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. हेंस Tn ऑफ GP इज 5:10. तो यहाँ पे 5 सपोज हमने यहाँ पे 25 कर दिया. फाइंड n, तो इसी तरीके से जाना है हमें, n इज इक्वल टू 25 आ जाएगा. ओके, इफ 5:100 इज गिवन और 99 इज गिवन, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे हमें अप्लाई करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव some basic rule here. If 3 numbers, suppose A, B, C are in GP, you know GP, second term upon first term is equal to third term upon second term. Then यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. B into B is equal to A into C, that is B square is equal to AC. तो यहाँ पर हम अभी ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, दैट इज सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, और यू कैन रिमेंबर स्क्वायर ऑफ मिडल वन और स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म. ओके, तो मैक्सिमम टाइम हम ये फॉर्मूला से सम्स करने वाले. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही मेथड पे डिपेंड है. 3 टर्म्स आर गिवन, मे बी फर्स्ट टर्म इज अननोन, सेकेंड टर्म मे बी अननोन और थर्ड टर्म मे बी अननोन. आउट ऑफ 3, 2 आर पर्टिकुलर, यू हैव टू फाइंड आउट वन ऑफ द अननोन टर्म. तो कोई भी टर्म हो सकता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द टर्म्स 4/3, सेकेंड टर्म इज x दैट इज अननोन, एंड थर्ड टर्म इज 4/27 आर इन GP. तो 3 टर्म GP में दिया है. जस्ट यू हैव टू अप्लाई प्रीवियस रिजल्ट हियर. ओके, एंड x मिल जाएगा. नॉट ओनली दिस x, आप ये 4/3 भी अननोन कर सकते हैं, ये 2 पर्टिकुलर दे देंगे, और थर्ड टर्म भी अननोन कर सकते हैं. मीन्स वन ऑफ द टर्म इज अननोन आउट ऑफ 3. ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम. गिवन 4/3 x and 4/27 are in GP, means geometric progression, then we have second term upon first term is equal to T3 upon T2. What is second term here? X, and first term is 4/3. तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, that is x upon 4/3 and 4/27 upon x here. Then again cross multiplication, और डायरेक्ट भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप. स्क्वायर ऑफ मिडल वन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस. ओके, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इंटू 4/27. Okay, and that is nothing but x square is equal to 4 into 4, 16 upon 81, right? 16 upon 81. Therefore x is equal to plus or minus 4/9. This is the final answer. यहाँ पर लास्ट आंसर जो दिया है टेक्स्ट बुक में, वो यानी इनकम्प्लीट नहीं बोल सकते मुझे, दैट इज नॉट करेक्ट. द लास्ट आंसर इन योर टेक्स्ट बुक इज नॉट करेक्ट. मे बी डिफरेंट हो सकता है, बट हियर x is equal to 4/9. Let's start question number 5th. If for a sequence Tn is equal to 5n minus 3 upon 2n minus 3, show that the sequence is a GP, find first term and common ratio. Okay, यहाँ पर देखिए जो सीक्वेंस है, हम सीक्वेंस उसका एन टर्म दिया है, मीन्स द सीक्वेंस हुज एन टर्म इज गिवन एंड यू हैव टू शो दैट दैट सीक्वेंस इज अ जीपी. उसे हम जीपी दिखाएंगे. ओके, तो ओनली वन टर्म इज गिवन. तो फॉर एग्जांपल सपोज अगर फ्यू टर्म्स अगर है हमारे पास, सपोज फॉर एग्जांपल 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन. तो सी दिस सीक्वेंस, show that this sequence is a GP. First एग्जाम्पल फर्स्ट 2.1 में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए. तो यहाँ पे देखिए जीपी दिखाना है तो कैसे करते हैं हम, T2 अपॉन T1 दिखाना चाहिए हमें. दैट इज T2 अपॉन T1 मीन्स 6 अपॉन
3 इज इक्वल टू 2, T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 एंड T4 अपॉन T3 भी दिखाते हैं हम इज इक्वल टू अ फिक्स नंबर 2. Okay, means T2 upon T1 is equal to T3 upon T2 is equal to T4 upon T3 is a fixed number, then it is GP. Okay, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो दिया है n term is given, not few terms of sequence given. Okay, few terms of sequence are not given, only one term, that is n term is given. समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे n term दिया है और ये sequence GP दिखाना है. तो डोंट फाइंड आउट T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन. यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट नहीं करना है. यू हैव टू अप्लाई डेफिनेशन ऑफ जीपी. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जीपी? इफ अ सीक्वेंस Tn is said to be GP if T suffix n plus 1 upon Tn is constant number, is fixed number for all n, for all means for every natural number n, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n. ओके, एकदम इजी. तो यहां पे n टर्म तो दिया है, हमें अभी T सफिक्स n प्लस 1 निकालना है और ये रेशियो अगर फिक्स नंबर, कांस्टेंट नंबर अगर आ गया देन वी कैन से दैट इट इज जीपी. ओके, समझ में आया आपको? तो सी जस्ट यू हैव टू अप्लाई डेफिनेशन हियर. Tn इज गिवन, सो यू हैव टू फाइंड आउट T सफिक्स n प्लस 1. यहाँ पे T सफिक्स n प्लस 1 निकालेंगे एंड टेकिंग रेशियो. राइट, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. गिवन Tn इज इक्वल टू 5 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 3. यू नो द बेसिक कंसेप्ट, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मैथ्स में. a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, सॉरी, a raised to n upon b raised to m. b raised to n. a raised to m upon b raised to m, that is nothing but a upon b bracket raised to m. ओके, मीन्स टेकिंग सेपरेट पावर. तो इस तरीके से यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. दैट इज नथिंग बट 5 अपॉन 2. देखिए यहाँ पे पावर जो है, इंडेक्स जो है सिमिलर है, सेम है. दैट इज 5 रेज टू n माइनस 3. यहाँ पे भी 2 का पावर n माइनस 3, सो इट बिकम 5/2 ब्रैकेट रेज टू n माइनस 3. ये तो बहुत आसान है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स है उन्हें समझने को दिक्कत होती है, करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगा. ओके, हाँ, यहाँ पे Tn मिल गया हमें 5 अपॉन 2 मिल गया, मीन्स इट इज गिवन, वो दिया है लेकिन सिंप्लीफाई किया हमने. 5 अपॉन 2 ब्रैकेट रेज टू n माइनस 3. देयरफॉर यू हैव टू फाइंड आउट T सफिक्स n प्लस 1. हमें T सफिक्स n प्लस 1 करना है. तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे T सफिक्स n प्लस 1? जहाँ पर n होगा RHS में वहाँ पे n प्लस 1 डालेंगे. अभी यहाँ पे n प्लस 1 की जगह, सॉरी, n की जगह n प्लस 1 डालेंगे. दैट इज 5/2 ब्रैकेट रेज टू, ये n जो दिख रहा है यहाँ पे, सी दिस n, ये n के जगह पे हम डालेंगे n प्लस 1 माइनस 3 एज इट इज करेंगे. ओके, सो n प्लस 1 माइनस 3 नथिंग बट n माइनस 2. तो T सफिक्स n प्लस 1 आ गया 5/2 ब्रैकेट रेज टू n माइनस 2. कंसिडर T सफिक्स n प्लस 1 अपॉन Tn इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे 5/2 ब्रैकेट रेज टू n माइनस 2 अपॉन 5/2 ब्रैकेट रेज टू n माइनस 3. सी यहाँ पे बेस सिमिलर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज अप्लाई करेंगे. दैट इज a रेज टू m अपॉन a रेज टू n. यानी बेस सेम है, यहाँ पे पावर डिफरेंट है. दैट इज नथिंग बट a रेज टू m प्लस n, a रेज टू m माइनस n. ओके, नॉट प्लस, m माइनस n. तो ये जो डिनोमिनेटर का है ऊपर चला जाएगा. ओके, m a रेज टू m माइनस n. बाय यूजिंग दिस रूल यू विल गेट 5/2 ब्रैकेट रेज टू n माइनस 2 माइनस यहाँ पे देखिए माइनस n माइनस इंटू ब्रैकेट n माइनस 3. तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, दैट इज माइनस n माइनस माइनस प्लस n. तो यहाँ पर
प्लस एन माइनस एन गेट कैंसल, ये कट हो जाएगा, -2 + 3 इट बिकम +1, दैट इज t सफिक्स n + 1 upon Tn is equal to 5/2 bracket S21, that is 5/2, and which is constant number. Hence, the sequence is a GP which common ratio is 5/2. Okay, constant number आ गया, hence it is GP and which common ratio is 5/2. तो देखो दो सॉल्यूशन इसके अंदर मिल गया हमें, जीपी भी आ गया हो, जीपी दिखा सके हम, और कॉमन रेशियो भी मिल गया. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म. व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होता है? T1. उसे ए भी डिनोट कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे Tn दिया है तो हम T1 निकालेंगे. व्हाट इज T1? फर्स्ट टर्म. तो Tn की वैल्यू में जहां पर n दिखेगा आपको वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी हैव Tn is equal to 5/2 bracket S2 n minus 3. Therefore, T1 is equal to first term is equal to T1 is equal to 5/2 bracket S2 1 minus 3. तो यहाँ पे n की जगह पे 1 डाल दिया और यहाँ पे RHS में भी n is equal to 1. That is 5/2 bracket S2 minus 2 and that is nothing but reciprocal. यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, x raised to minus n is equal to 1 upon x raised to n. तो ये नीचे जाते वक्त रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर. टेकिंग रेसिप्रोकल मीन्स 2 square upon 5 square, that is 4/25. Okay, the first term is 4/25. This is the final answer, right? And common ratio is 5/2. Okay, इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन है. तो हम जीपी दिखा सकते हैं इसे. देन यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन रेशियो एंड एज वेल एज फर्स्ट टर्म. चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं. इफ फॉर अ सीक्वेंस Tn 2 raised to n minus 1 upon 5 raised to n minus 3, then show that the sequence is a GP. Find the first term and common ratio. तो सेम टाइप से इसे करना है. n टर्म दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट n plus 1 term, n plus 1 term, then taking ratio, you will get common ratio as well as GP आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे लास्ट आंसर है कॉमन रेशियो आ जाएगा 2/5 एंड फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1/50. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज हियर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन. इफ फॉर अ सीक्वेंस Tn is equal to -5 bracket S2 n plus 1 upon 3 raised to n minus 1, then show that the sequence is a GP. Find the first term and common ratio. इसमें कॉमन रेशियो आ जाएगा -5/3 एंड फर्स्ट टर्म है 25. जस्ट यू ट्राई दिस 2 क्वेश्चंस. ओके, अभी हमें इंपॉर्टेंट टाइप स्टार्ट करना है. If the problem involves product of the terms or sum of the terms of GP, then it is convenient to take the terms in GP are as follows. Or sometimes find 3 terms, find 4 terms, find 5 terms. ये अगर जो वर्ड्स है ये अगर क्वेश्चन में अगर इन्वॉल्व होंगे, देन यू हैव टू टेक और कन्वीनियंट टू टेक terms in GP like 3 terms in GP as a upon r, comma a, comma ar. Okay, 3 terms इस तरीके से कंसिडर करेंगे हम. ओके, 3 टर्म, डोंट टेक फर्स्ट टर्म एज ए. तो यहाँ पे ये एज अ फर्स्ट टर्म नहीं लेना है, ए आर स्क्वेयर, डोंट टेक लाइक दिस. ओके, मोस्टली हम फर्स्ट टर्म ए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर फाइंड 3 टर्म्स और 4 टर्म्स और 5 टर्म्स और प्रोडक्ट और सम ऑफ द टर्म्स इस तरीके से अगर मेंशन किया होगा, देन इट इज कन्वीनियंट टू टेक द टर्म्स इन जीपी एज फॉलोज. तो 3 टर्म्स हम इस तरीके से लेंगे, ए अपॉन आर, कॉमा ए, कॉमा ए आर. सेकेंड वन, 4 टर्म्स वी हैव टू कंसिडर ए अपॉन आर क्यूब, कॉमा ए अपॉन आर, कॉमा ए आर, कॉमा ए आर क्यूब. एंड 5th टर्म we have to consider as a upon r square, comma a upon r, a r and a r square. Students, you must remember these, all these 3 results. These are very important, and next question is depends on these 3 results. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Okay, find 3 numbers in GP. सीक्वेंस दिया है जीपी, सच दैट देयर सम इज 21
एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। तो यहाँ पे देखिए फाइन 3 नंबर्स अगर आ गया तो डायरेक्ट आप ए अपॉन आर, ए एंड ए आर इस तरीके से कंसिडर करेंगे। ओके, 3 नंबर्स इस तरीके से कंसिडर करना है। एंड और एक हिंट दिया था आपको, सम और प्रोडक्ट अगर आ गया, ये वर्ड अगर इन्वॉल्व है तो यू हैव टू कंसिडर 3 नंबर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ द देयर सम ऑफ द नंबर्स इज 21 दिया है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर मीन्स पहला टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म इज 189। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द 3 नंबर्स इन जीपी बी a अपॉन r, a, ar। ओके, according to the given condition, what is given condition? Sum or their sum is 21, that is a upon r plus a ar is 21. Now taking a common, यहाँ पे दोनों भी unknown है, a and r unknown है. Now taking a common from LHS, you will get a into bracket 1 upon r प्लस या ए बाहर आने से 1 आ जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 21. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. व्हाट इज सेकंड कंडीशन? एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर is 189. That is a square upon r square plus a square r square is equal to 189. Now taking a square common, you will get 1 upon r square plus 1 plus r square is equal to 189. Suppose this is equation number 2. On squaring equation 1, what was 1? a into bracket 1 क्या था यहाँ पे? a into bracket 1 upon r plus 1 plus r इज इक्वल टू 21. तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करना है हमें, बिकॉज अब यहाँ पे स्क्वायर आ गए, सब ये स्क्वायर टर्म आ गए. ओके, स्टार्टिंग में नहीं लिया हमने, ये स्क्वायर आने से, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन देख के हम उसे सॉल्व करेंगे. तो इसका स्क्वायर लेने से स्क्वायर ऑफ ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा सेपरेट स्क्वायर और 21 का स्क्वायर आ जाएगा. इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर 1 upon r plus 1 plus r whole square is equal to 21 square is 441. Now you have to expand this bracket. अभी ये bracket expand करेंगे हम. How to expand that? By using formula. You know, a plus b plus c the whole square is equal to square of first term plus square of second term plus square of third term plus square of 2 times first term into second term plus 2 times first term into third term plus 2 times first and third here and second and third. Okay, तो देखिए वापस बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, a plus b the whole square is equal to square of first term plus square of second term plus square of third term plus 2 into first term into second term plus 2 into first term into third term plus 2 into second and third. ओके, अगर ये फॉर्मूला मालूम नहीं तो आप लिख सकते हैं, राइट. तो अकॉर्डिंग दिस रिजल्ट यू हैव टू एक्सपांड दैट ब्रैकेट एंड दैट इज नथिंग बट ए स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस स्क्वेयर ऑफ आर इज आर स्क्वेयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म दैट 2 अपॉन आर प्लस 2 इंटू first term into third term that is 2 into 1 upon r into r get cancelled, that is 2 plus 2 into r is equal to 441. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट इसको 3 टर्म है, देखिए यहाँ पे ये जो आ गए यहाँ पे, तो इसे लेके हम इसे ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, वापस इसे लेके ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे. ओके, तो ये सेपरेट हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं. दैट इज ए स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे ए स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू दिस ब्रैकेट आ गया. ओके, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 189, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है. ओके, सो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या था 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर, दैट्स वाई 2 कॉमन यहाँ से लेना है हमें. टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम दिस और ए अंदर ले लेंगे हम. दैट इज नथिंग but a square into bracket 1 upon r square plus 1 plus r square plus एक a अंदर चला जाएगा, twice a into bracket a upon r plus a r is equal to
441. And from 1 for first and second, what is this? This is nothing but 819 189 plus 2a into bracket ये आ गया 21, ये आ गया 21 इज इक्वल टू 441. नाउ हमें a चाहिए तो यहाँ से a मिल जाएगा, दैट इज 42a इज इक्वल टू 42a इज इक्वल टू, वापस रिपीट स्टेप होगा, 42a इज इक्वल टू 441 माइनस 189 and that is nothing but 42a is equal to 252, therefore a is equal to 252 upon 42, hence a is equal to 6. a मिल गया. अभी a मिलने के बाद r फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे क्या है, a and r only two terms, only two numbers are unknown, तो a मिल गया. now you have to find out r, put और substitute a is equal to 6 in one of the equation. हम यहाँ पे फर्स्ट में करते हैं. okay, substitute the value of a in equation 1. what is a? 1 upon r plus 1 plus r, यहाँ पे इंटू a था तो ये इधर ले लिया हमने, दैट इज 21 अपॉन 6. करेक्ट, 20 a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे 6. नाउ टेकिंग एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, दैट इज 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर. अगेन टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर, दैट इज इक्वल टू 2 into r square plus 2r plus 2 is equal to 7r. Again this 7r transfer that LHS side, it become 2r square minus 5r plus 2 is equal to 0. right? तो यहाँ पे quadratic equation in terms of r आ गया. you have to simplify this, 2 into 2 is 4, 4 को ऐसे split करना है such that their product is 4 and addition is minus 5, so it become minus 4 minus 1. see product क्या आ गया, minus 4 into minus 4 into minus 1 is 4 आ गया, and their addition is minus 5, addition is minus 5, so it become 2r square minus 4r minus r, minus 1 into r means minus r plus 2. taking 2 common, ये तो आपको आता है, ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं आप. यू कैन स्किप दिस वन, ये स्टेप स्किप कर सकते हैं आप, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं अगर आ रहा तो, अदरवाइज एक स्टेप लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो हियर 2r minus 1 bracket complete into r minus 1 is equal to 0. so 2r minus 1 is 0, so r is equal to half, और r minus 2 is 0, so r is equal to 2. ओके, तो इस तरीके से r भी मिल गया हमें, बट देर आर टू वैल्यूज ऑफ r, सो यू हैव टू फाइंड आउट 3 terms according this r. means there are 2 cases. if when a is equal to 6 and r is equal to half, so a upon r, what is first term, a upon r, that is 6 upon half, that is 12, a is 6 and ar is 3, so the required terms are 12, 6 and 3. when a is equal to case second, when a is equal to 6 and r is equal to 2, so a upon r is equal to 6 upon 2 is 3, 6 and 12. Hence the required 3 terms are 12, 6, 3 or 6, 3, 6, 12. That's it. Okay, तो इस तरीके से हम a and r find out करेंगे and you have to find out required terms. तो इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें और दे सकते हैं हम. फाइंड 3 numbers in GP such that their sum is 35 and their product is 1000. ये तो और भी आसान है क्योंकि प्रोडक्ट आ गया, इसे डायरेक्ट a मिल जाएगा, a क्यूब इज 1000, सो a इज इक्वल टू 10, डायरेक्ट आ गया, a इज 10. सबसे आसान क्वेश्चन ये है. ओके, आप कर सकते हैं इसे. अगेन फाइंड 3 numbers in GP such that their sum is 13 upon 3 and sum of their square is 91 upon 9. वो प्रीवियस टाइप जैसा है. ओके, प्रीवियस टाइप. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. इसमें फर्स्ट का सॉल्यूशन दिया है, सेकंड का भी दिया है, राइट? जस्ट यू ट्राई दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 4 numbers in GP such that the sum of the middle two is 10 by 3 and their product is 1. यानी प्रोडक्ट दिया है, सम ऑफ मिडल दिया है. ओके, तो इसमें देखो फाइंड 4 numbers, तो हम 4 नंबर कैसे लेना है आपको बताया. सॉल्यूशन, लेट द 4 numbers in GP be a upon r cube, comma a upon r, comma ar, comma ar cube. Okay, according to the condition, the product
is 1, product, their product is 1, means a upon r cube into a upon r into ar into a r cube is equal to 1. तो यहाँ पर देखिए r cube कट हो जाएगा, r also get cancel, that is a raised to 4 is equal to 1, so a is equal to 1. तो a मिल गया हमें, देखो दो स्टेप में a मिल गया. नाउ you have to find out r from the second condition. What is second condition? Sum of middle two. What are the middle two here? Middle two terms are this one, middle two. ओके, तो ये मिडल टू है, तो इसका सम दिया है 10/3. दैट इज also the sum of middle two number is 10/3. Means a upon r plus a r is equal to 10/3. That is nothing but taking a common और a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. a common into bracket 1/r plus r is equal to 10/3. What is a? 1. तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. That is 1/r plus r is equal to 10/3. Then cross multiplication, taking LCM and cross multiply, taking LCM here and cross multiply. Just you have to simplify LHS here. That is 1 plus r square upon r. Then cross multiply here. That is 3 into bracket 1 plus r square is equal to 10r. Then open that is 3 plus 3r square is equal to 10r. अब ये 10r इधर आएगा, that is 3r square minus 10r plus 3 is equal to 0. Again it is quadratic equation. Then you have to solve this quadratic equation by using previous method, that is r minus 3 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके 10th में, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप. दैट इज r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 1/3. अगेन r having two values, so there are two cases. Case 1, when a is 1 and r is 1/3, then the numbers are a upon r cube, that is 1/1/27 is equal to reciprocal of 1/27 is 27. A upon r is 1/1/3 is equal to 3. AR is 1/3. AR cube is 1/27. Means the required numbers are 27, 3, 1, 1/3, 1/27. Okay, case second, 27, 3, 1/3 and 1/27. Case second, when a is equal to 1 and r is equal to 3, the required numbers are a upon r cube, that is 1/27, a upon r is 1/3, AR is 3 and AR cube is 27. So the required numbers are 1/27, 1/3, 3, 27. Okay, see the required four numbers in GPR इस तरीके से लिख सकते हैं बीच में और करके, right? Next one is extra question of same type. Find five numbers in GP such that 5 numbers का आ गया यहाँ पे. Okay, you have to find out 5 numbers. ये नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन पे डिपेंड है. चलो उसका क्वेश्चन ले लेते. Find 5 numbers in GP such that their product is 1024 and the fifth term is the square of the third term. Okay, 5 numbers find out करना है हमें. And there are two condition. हर एक सम में दो कंडीशन है. Product, their product is 1024 and the fifth term is a square of third term. देखते हैं हम. Let the 5 numbers in GP be 1 upon r square, sorry, a upon r square, comma a upon r, comma a, comma ar, comma ar square. Okay, according to their condition क्या दिया है? What is the condition? See, their product is 105, means product यहाँ पे ये एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा. ये क्या होगा? दैट इज नथिंग बट ये मल्टीप्लिकेशन है. सी हियर मल्टीप्लिकेशन इज हियर, मल्टीप्लाइड multiplication here means a upon r square into a upon r into a into ar into ar square. यहाँ पे r square और square get cancel, a get sorry r get cancel, that is a into a into a into a 5 times, that is a raised to 5 is equal to 1024. What is 1024? 4 raised to 5. Okay, so a raised to 5 is equal to 4 raised to 5, so a is equal to 4.
ओके, ए इज इक्वल टू 4, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हमें दो स्टेप में यानी फर्स्ट कंडीशन से ए मिल गया. नाउ व्हाट इज सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन क्या दिया है? फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ थर्ड. व्हाट इज थर्ड टर्म? थर्ड टर्म यहाँ पे देखिए, थर्ड टर्म ये है एंड फिफ्थ टर्म इज दिस. फिफ्थ टर्म इज अ स्क्वायर ऑफ थर्ड, मीन्स ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इस तरीके से आएगा, स्क्वायर ऑफ थर्ड वन. ओके, इस तरीके से. एंड द फिफ्थ टर्म इज अ स्क्वायर ऑफ थर्ड वन एंड दैट इज नथिंग बट ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. राइट, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अब यहाँ पे हम ए गेट कैंसल, 1 ए कैंसल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए. राइट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए. व्हाट इज ए? 4. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 फ्रॉम 1, सो आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. राइट, तो आर के दो वैल्यू आ गए. व्हेन a is 4, r is plus 2. There are two cases, r is plus 2. Then it become a upon, means you have to find out the numbers, a upon r square, that is 4 upon 4 is 1, a upon r is equal to 4 by 2 is 2 and a is 4, and the other numbers are ar is 8, ar square is 16. So the required numbers are, यहाँ पे required numbers कितने आ गए? 1, 2, 4, 8, 16. These are the required 5 numbers. Okay, तो अभी सेकेंड केस लेंगे. इफ ए, व्हेन a is equal to 4 and r is equal to minus 2, so the required numbers are a upon r square. What is r square? Minus 2 square is, minus 2 square is 4, that is 1. A upon r is minus 2, a is 4, and ar, that is minus 8, and ar square minus 2 square is 4, that is 16. So the numbers are, the required 5 numbers are 1, 2, 4, 8, 16, और माइनस आएगा यहाँ पे 1, minus 2, 4, minus 8 and 16. There are two sequences and their terms are like this. Okay, so तो यहाँ पे 5 terms इस तरीके से निकाल सकते हैं हम. If you like this my channel, then subscribe it and share it with your friends. Thank you for watching.